ڈے ریڈرس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلے اب بنا وقت ضائع کیے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چلے گا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے گاؤں میں کھڑی عظیم الشان حویلی کا ہے، جو کہ پورے گاؤں میں شاہ حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ یہ حویلی اس گاؤں کے سرپنچ شیراز شاہ کی تھی، جو کہ اپنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، شازم شاہ، شازل شاہ اور شہرام شاہ۔ شہرام شاہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، زرغام شاہ، جس کی پیدائش کے وقت اس کی والدہ نور النساء انتقال کر گئی تھی، اور یہی غم لیے اس کے والد بھی اسے 5 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد شازل شاہ تھے، جن کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، بیٹا ہاتھ شاہ اور بیٹی انشرا شاہ۔ اس کے بعد شازم شاہ تھے، جن کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، نائل شاہ۔ ان کے علاوہ شیراز شاہ کی ایک بیٹی بھی تھی، ماہنور۔ سالوں پہلے انہوں نے اپنے بابا کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر نکاح کیا تھا، جس کی وجہ سے شیراز شاہ نے ان پر شاہ حویلی کے دروازے بند کر دیے تھے۔ ایک عرصے تک ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ ماہنور اور ان کے شوہر کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر شیراز شاہ کے دل پر پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گری تھی۔ وہ دل مسوم کر رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی ماہنور کی آخری نشانی حال نور کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، جو کہ اس وقت صرف 4 سال کی تھی، لیکن اس کا وجود ہر کسی کو ناگوار گزرا تھا سوائے شیراز شاہ کے۔ ایک وہی اس کے اپنے تھے۔ سورج کی روشنی نے رات کی سیاہی کو چیرنا شروع کیا تو زمین پر ہلچل مچنی شروع ہو گئی تھی۔ صبح ہر کوئی رزق کی تلاش میں لوگوں نے گھر سے نکلنا شروع کیا۔ پرندوں نے بھی گھونسلوں کو چھوڑ کر اڑان بھری تھی، اور یوں ہی شاہ حویلی کے مکین بھی جاگ اٹھے تھے۔ صبح صبح سارے گھر میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنے کام پر جانا تھا۔ ملازموں کی ایک فوج ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن ان میں سب سے تیز حال نور کے ہی ہاتھ چل رہے تھے۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ حال شازم شاہ کی بیگم نازیہ شاہ نے پوچھا تھا۔ بس چھوٹی مامانی ہو گیا ہے، حال نے کہا۔ وہ اس وقت اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی۔ گاؤں میں شیراز شاہ نے ہی اسکول اور کالج بنوائے تھے۔ کتنی بار کہا ہے تم سے جلدی اٹھ جایا کرو، کام زیادہ ہوتا ہے، پر نہیں، تم تو اپنے نام کی ایک ہو، مجال ہے جو کسی بات کا اثر ہو۔ نازیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ یہ ان کا معمول تھا، ہر صبح کا آغاز حالے کو بے عزت کر کے ہی کرتے تھے، جبکہ حالے بس ضبط کر جاتی تھی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ جلدی سے ناشتہ لگاؤ، آج بڑی مہربانی ہو۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی باہر چل دی تھی۔ حالے بھی سر جھٹک کر تیز تیز ہاتھ چلانے لگی تھی۔ گھر میں اتنے ملازمین ہونے کے باوجود زیادہ تر کام وہی کرتی تھی، تاکہ وہ یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں تھی۔ السلام علیکم آغا جان، حالے نے مسکراتے ہوئے شیراز شاہ کو سلام کیا، جو کہ سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آؤ ناشتہ کرو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ شیراز شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ حالے میری بکس نہیں مل رہی؟ حالے کے بیٹھنے سے پہلے ہی انشرا نے پکارا تھا۔ میں نے وہیں رکھی تھی تمہاری ٹیبل پر، حالے نے کہا۔ تمہیں کیا میں اندھی لگتی ہوں؟ اگر ہوتی تو مجھے نظر آ جاتی۔ جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ جہاں رکھی ہیں، انشرا نے سر جھٹک کر بولی تھی، اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ حالہ اپنی کرسی کھینچ گئی تھی اور واپس دگردی پر چل دی تھی۔ شیراز شاہ نے افسوس سے دیکھا، وہ یہاں آ کر بے بس ہو جاتے تھے۔ چھوٹے شاہ کہاں ہیں؟ شیراز شاہ کی بیگم کوثر شاہ نے پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے، میں نے پیغام بھیجا دیا ہے، آتا ہی ہوگا، شازل شاہ کی بیگم نسرین بیگم نے کہا۔ تبھی سیڑھیوں سے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، جہاں 19 سالہ زرغام چلتا ہوا آ رہا تھا۔ دراز قد، مضبوط جسامت، سرخ و سفید رنگت، نیلی چمکدار آنکھیں، کالے گھنے بال۔ وہ بے شک کافی ہینڈسم تھا۔ انشرا نے پرشوق نظر سے دیکھا، وہ تھا ہی ایسا کہ نظر ٹھہر جاتی۔ السلام علیکم زرغام سلام کرتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا لوگے؟ بریڈ یا پراٹھا؟ نسرین بیگم نے فوراً پوچھا۔ انداز ہی ایسا تھا کہ مکھن لگانے والا۔ نہیں، بس چائے لوں گا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زرغام نے ایک نظر گھڑی کو دیکھ کر بولا۔ تبھی حالے نیچے آئی تھی۔ بیٹا اتنی دیر کہاں لگا دی؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، شیراز شاہ بولے تھے۔ وہ آغا جان بکس ڈھونڈ رہی تھی، مل ہی نہیں رہی تھی، حالے نے کہہ کر انشرا کے پاس ٹیبل پر رکھی تھی۔ کیوں، کہاں گئی تھی بکس؟ شیراز شاہ نے پوچھا تھا۔ بیٹھ کے نیچے، حالے بولتے ان کے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ ہاتھ نے ایک تیز نظر انشرا پر ڈالی، جو کہ کھانا بھلائے کن آنکھوں سے زرغام کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، وہ جانتا تھا وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی تھی۔ اوکے آغا جان، میں چلتا ہوں، زرغام بولتا ہوا اٹھ کر آؤ۔ انشرا کی نظریں مسلسل اسی پر تھی اور ہاتھ کی انشرا پر۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، اللہ حافظ، شیراز نے کہا تھا۔ اللہ حافظ، چلو حالے نور، زرغام نے حالے سے کہا، جس نے ابھی 2 نوالے بھی بہت مشکل سے لیے تھے۔ پھر اس کی آواز پر ایک دم سے اٹھی تھی۔ اللہ حافظ آغا جان، حالے بولتی باہر نکل گئی۔ تبھی دروازے سے 18 سالہ نائل داخل ہوا تھا۔ حالے کو آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حالے نے ایک نظر نائل کو دیکھا، رف سا حلیہ، بکھرے بال، شرٹ کے کھلے بٹن، اور حلیے سے ہی اپنے آوارہ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے والی تھی، جب نائل نے ایک دم اس کا بازو تھاما تھا۔ حالے کی سانسیں مانو سینے میں اٹک گئی تھی۔ اس نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا، چھوڑے وہ اپنا بازو چھڑواتی بولی تھی۔ بندہ سلام ہی کر جاتا ہے،
ऐसी भी क्या बेरुखी? नायल ने इसे देखते हुए कहा था, मुझे मुझे देर हो रही है। हाले बोली थी, कोई बात नहीं, होने दो देर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी डांट ही पड़ जाएगी तो वो तो घर में भी अक्सर पड़ती रहती है। जस्ट चिल, नायल बोला था। प्लीज़ छोड़े, मुझे जाना है। हाले बोली, इसका लहजा रोन सा गया था। हाले नूर इससे पहले कि नायल कुछ कहता, ज़रगाम की गिरफ्तार आवाज़ पर झटके से इससे दूर हुआ। वो भी मौका पाती तेज़ से बाहर निकली थी। वो भी सर झटकता अंदर चल दिया। हाले ने बाहर आके से देखा, जो कि अपनी गाड़ी में मुंतज़िर सा बैठा हुआ था। खुद को संभालती आगे बढ़ी थी। आगे बैठो। वो जो पिछली सीट का दरवाज़ा खोल रही थी, इसकी आवाज़ पर अंदर तक काम की थी। फिर बगैर कुछ कहे फ्रंट सीट पर बैठ गई। ज़रगाम ने गाड़ी गाँव के अच्छे रास्तों से गुजरते हुए स्कूल के सामने रोकी थी। हाँ, तुम्हें पिक कर लेगा, ज़रगाम ने इसे देखे बगैर बोला था। जी अल्लाह हाफ़िज़। हाले बोलती हुई उतर गई थी। इसके उतरते ही ज़रगाम गाड़ी जन से भगा ले गया था। जब वो चुपचाप अंदर बढ़ गई। नसरीन कहाँ मर गई हो तुम सब? कौसर जहाँ को काफ़ी देर से आवाज़ें दे रही थी। जी अम्मा जान। नसरीन बेगम और नाज़िया बेगम भागती हुई आई थी। कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गई हो दोनों? कौसर जहाँ ने गुस्से से कहा था। वो अम्मा जान कमरे में थी तो पता नहीं चला। नाज़िया बेगम ने कहा था, कमरे में थी, कब्र में तो नहीं थी ना? जो आवाज़ें नहीं आ रही, मेरी तस्बीह कहाँ है? मिल नहीं रही, कहाँ पर है? कौसर ने पूछा था। अम्मा हमें नहीं पता आपकी चीज़ें कहाँ हैं। चीज़ें तो आपकी हाले रखती है, नसरीन बेगम ने कहा था। एक तो ये कलमुही कोई काम ढंग से ही नहीं कर सकती, पता नहीं कब छूटेगी इससे मुसीबत से हमारी जान। कौसर जहाँ नहुसत से बोली थी। शाज़िया, ओ शाज़िया। नसरीन बेगम ने मुलाज़िमा को बुलाया था। जी बीबी जी, जाओ जाकर अम्मा की तस्वीर ढूंढो, पता नहीं किधर रख गई है वो मनोज से। नसरीन बेगम ने कहा था। जी अच्छा। मुलाज़िमा बोलती हुई गई थी। कौसर जहाँ भी सोफे पर बैठी। जब थोड़ी देर में मुलाज़िमा वापस आई थी। क्या हुआ, मिली नहीं? नाज़िया बेगम ने पूछा था। नाज़िया बेगम, ये तस्बीह के दाने मिले हैं ड्रेसिंग के दराज में। मुलाज़िमा ने कहा था। ज़रूर इसमें नहुसत टूटी होगी, इसलिए छुपा गई है। आ जाने दो इसे। कौसर जहाँ गुस्से से बोली, जिस पर ऊपरी मंजिल पर रेलिंग के साथ खड़ा नायल मुस्कुरा दिया था। और करो मुझे इग्नोर हाले नूर। नायल हाथ में जो चेन घुमाता हुआ बोला था। मैं तुम्हें क्लास में रूम में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। हाले की दोस्त रिमशस के बराबर आकर बैठी हुई बोली थी। क्यों, कोई काम था? हाले गहरी सांस अंदर खींचते हुए बोली थी। इधर देखो मेरी तरफ, तुम रो रही हो। उफ, फिर कुछ कहा है किसी ने तुमसे? रिमशा गुस्से से बोली। वो हाले के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही। हाले खुद को संभालती बोली थी। रिमशा ने एक नज़र से देखा। सफ़ेद रंग, गुलाबी होंठ, घने चालों जैसी मुड़ी हुई पलकें, सीधी सतवा नाक, घने स्याह बाल और शहद रंग आंखें। वो बेशक शहजादी जैसा हुस्न रखती थी, पर किस्मत हुस्न से थोड़ी न मिलती है। अब तो मुझसे भी छुपाओगी, सच बताओ किस लिए रो रही हो? रिमशा ने कहा, जिस पर इसने ज़ुबान वाला वाक़या सुना दिया। उफ़, ये मुसीबत, तुम अपने आगाजान से क्यों नहीं बात करती? देखना कैसे तीर की तरह सीधा करेंगे तुम्हारे इस कज़न को। रमशा ने कहा था। नहीं, मैं आगाजान से बात नहीं कर सकती, वो गुस्सा करेंगे। और हाले रुकी और फिर तुम्हारी ममानियाँ तुम पर गुस्सा करेंगी। रिमशा ने इसका जुमला मुकम्मल किया, जिस पर हाले ने महज सर हिलाया था। सब ठीक हो जाएगा यार, तुम देखना, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई शहज़ादा आएगा, जैसे हर कहानी में आता है। फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। रिमशा ने इसके गिर्द बाजू हाल करते लाड से बोली, जिस पर हाले ज़रा सा मुस्कुरा दी। रिमशा वैसे से यही ख्वाब दिखाती रहती थी, और वो भी सिर्फ यही एक ख्वाब देखती थी, पर हकीकत में और ख्वाब में बहुत फ़र्क होता है। हेलो जी भाई का हाथ कॉल रिसीव करता बोला था। हाले नूर को भी कर लो, ज़रगाम मसरूफ़ सा बोला था। पर भाई मैं तो शहर जा रहा हूँ, हाथ ड्राइव करते हुए बोला था। अच्छा ठीक है, ज़रगाम ने कहकर कॉल काट दी। फ़ोन हाथ में पकड़े वो सोच में पड़ गया था कि क्या करे। फिर एक ख्याल के तहत इसने नंबर मिलाया था। हेलो नाइल, कॉल रिसीव करता बोला था। कहाँ हो तुम? ज़रगाम ने पूछा था। बिस्तर पर हूँ, नाइल ने आंखें मलता हुआ बोला था। कोई वक्त है सोने का? ज़रगाम गुस्से से बोला था। आपने फ़ोन क्यों किया? कुछ नहीं, सो जाओ तुम, ज़रगाम ने कहकर गुस्से से कॉल काट दी थी। फिर चाबी उठाता उठ खड़ा हुआ था। हाले तुम्हें लेने कौन आने वाला है? रमशा ने हाले को देखते पूछा था। शाहजी ने कहा था कि हाथ आएगा लेने। हाले बोली थी। शाहजी मतलब ज़रगाम का भाई? रमशा ने पूछा। हाँ। हाले से एक लफ्ज़ी जवाब देकर बाहर देखने लगी, तब ये गाड़ी आकर रुकी थी। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। हाले बोलती तेज़ से बाहर निकल गई, लेकिन गाड़ी में हाथ की जगह ज़रगाम को बैठा देखकर ठटकी थी। जल्दी से अंदर बैठो, मैं तो फारिग नहीं हूँ, से हिलता ना पाकर ज़रगाम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो हड़बड़ा कर अंदर बैठ गई थी। ज़रगाम ने उसे देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। हाले सर झुकाए बैठी थी, जबकि ज़रगाम ने उसे देखने तक गवारा न किया था। गाड़ी शाहवली के बाहर रुकी। चलो जाओ, ज़रगाम ने बोलने पर वो तेज़ी से बाहर निकल कर अंदर की जाने बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने हाल में बैठी कौसर जहाँ को सलाम किया। बाकी दोनों ख़वातीन भी इधर ही मौजूद थी। इधर कौसर जहाँ ने से अपनी तरफ आने का इशारा किया। हाले को कहीं खतरे का सिग्नल मिल रहा था। जी नानो, हाले ने इनके सामने जाते बोली थी। चटाक हाले मुँह पर हाथ रखे हैरत से देख रही थी। इसके गाल पर उंगलियों के निशान बन गए थे। इसकी शहद रंग आंखें पानी से भर गई थी। नानो, कल मुँह ही हाथ टूटे हैं तेरे, एक काम ढंग से नहीं कर सकती, बैठे बैठाए तेरे जैसा सांप हमारे सर पर आ गया। तेरी माँ तुझे लेकर क्यों नहीं मरी? कौसर जहाँ से बालों से पकड़ कर बोली, जबकि हाले को तो अभी तक अपना कसूर पता नहीं चला था। नानो, मैंने क्या किया है? हाले रोते हुए मुश्किल बोली थी। क्या किया है तूने? तू जैसा गंदा खून हमारे सरों पर मुसल्लत हो गया, यही क्या कम है? कौसर जहाँ
जहाँ गुस्से से बोली थी, नाना प्लीज़ छोड़ दे, दर्द हो रहा है। वो भी के लहजे में बोली थी, दादी जान। उनके गहरे कुछ और कहने से पहले बाहर से आता ज़रग़ाम बोला था, कोसा जहाँ ने एकदम हाले को छोड़ा। तभी शराज शाह अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन शोर सुनकर पीछे ही खड़े हो गए थे। जबकि हाले एकदम उठी थी। छोटे शाह आप कब आए? कोसा जहाँ ने प्यार से पूछा था, क्या है इसने क्या किया है इसने, क्यों मार रही हैं आप इसे? ज़रग़ाम इनका सवाल नज़रअंदाज करता हुआ सख्त लहजे में बोला था, अरे ये तो है ही मनहूस, हाथ टूटे हुए हैं इसके। कोसा जहाँ रोती हुई हाले को देखकर नहुसत से बोली थी, क्या किया है तुमने? ज़रग़ाम हाले से मुखातिब हुआ, जिसने रोते हुए नफ़ी में सर हिला दिया था। इसे खुद नहीं पता था। इसके भीगे चेहरे को देखकर इसने गुस्से से ले पीछे थे। जाओ अपने कमरे में, ज़रग़ाम ने इसे कहा था, जिस पर तकरीबन भाग कर ऊपर गई थी वो दादी जान। ज़रग़ाम इनकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। हाले नूर भी इंसान है और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि आप इसके साथ इस तरह का सलूक करें। अगर आप इसकी कोई गलती माफ़ नहीं कर सकती तो बेहतर है इसे कोई काम ना कहा करें। घर में मुलाज़मीन की फ़ौज है, किसी और को कह दिया करें, लेकिन आइंदा इसके साथ इस तरह का सलूक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रग़ाम सख्त लहजे में बोलता ऊपर चला गया। किचन के दरवाजे में खड़ी अंशरा ने गुस्से से पैर पटका था। ज़रग़ाम का यूँ हाले की हिमायत करना इसे ज़हर लग रहा था। यही हाल बाकी सबका भी था सिवाय शराज शाह के। इन्हें जैसे हाले की मुश्किलों का हल मिल गया था। ज़रग़ाम अपने कमरे में सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था जब दरवाज़ा नॉक हुआ था। आ जाओ साहब, आपको खाने पर बुला रहे हैं, मुलाज़िम ने कहा था। मुझे भूख नहीं है, ज़रग़ाम ने कहा, जिस पर वो बाहर निकल गया। वो आंखें मूंदे बैठा था जब दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ था। कहा ना मुझे भूख नहीं है आगा जान, आप? ज़रग़ाम बोलता बोलता रुका था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है ज़रग़ाम, आगा जान ने संजीदगी से कहा था। आगा जान बैठिए ना, ज़रग़ाम ने कहा, जिस पर वो बेड पर बैठे। अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते, आपने खुद क्यों ज़हमत की? ज़रग़ाम बोला, बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बल्कि गुजारिश करनी है। शराज शाह थके हुए लहजे में बोले थे, जिस पर ज़रग़ाम सोफे से उठता हुआ इनके कदमों में आ बैठा था। आगा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो बस हुक्म करें। ज़रग़ाम इनके हाथ थाम कर बोला, बेटा मेरे दिल पर एक बोझ सा है जो कि दिन ब दिन मुझे मौत की तरफ धकेलता जा रहा है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ दूँ। अल्लाह न करे। आगा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा का सलामत रखे। ज़रग़ाम ने इनके हाथ पर बोसा देते हुए बोला था, बेटा मुझसे एक गुनाह सर हुआ है। मैंने महानूर पर दरवाजे बंद किए थे। वो कई बार आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने इसकी ना सुनी। वो अपने दिल की बातें दिल में ही लिए इस दुनिया से चली गई। मैं इसे माफ़ी तक ना मांग सका और ना ही मैं हाले के लिए कुछ कर सका। तुमने देखा किस तरह इस घर के लोग इसके साथ जानवर की तरह सलूक करते हैं। इसकी बड़ी वजह भी मैं ही हूँ। मैंने इस घर में महानूर की हैसियत ख़त्म कर दी थी, इसलिए हाले की हैसियत भी ख़त्म हो गई है। सबने इसे बस एक बेकार चीज़ समझ रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले इसके लिए कुछ कर जाऊँ। शराज शाह नम लहजे में बोले थे। आगा जान मैं समझा नहीं। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम हाले से निकाह कर लो, शराज शाह ने कहा, जिस पर ज़रग़ाम ने चौंक कर इन्हें देखा था। क्या? ज़रग़ाम ने हैरत से कहा, बेटा वो अकेली इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती, इसे किसी सहारे की ज़रूरत है। वो मैं आज हूँ, कल नहीं होऊंगा। मेरी वजह से वो भी सांस ले रही है। अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो ये लोग तो उसे नोच डालेंगे। देखो ज़रग़ाम, हाले बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक और फर्माबरदार बच्ची है। मेरी बात मान लो बेटा, ताकि मैं कल हश्र में अपनी महानूर से नज़रें मिला सकूं। शराज साहब आंखों में आंसू लिए इससे कह रहे थे। ज़रग़ाम पर लबीजा ने देखा, फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद इसके हाथ पर बोसा दिया था। आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है आगा जान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूँगा। आखिर आप ही तो मेरे बाबा हैं और मामा दोनों हैं। ज़रग़ाम ने मुस्कुराकर आगा जान से कहा था और आगा जान ने उसके माथे पर बोसा दिया। शुक्रिया मेरे बेटे, तुमने मुझे इस काबिल से बना दिया कि मैं सुकून से मर जाऊँ। शराज साहब बोले थे। आगा जान बस ये करें, क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं? ज़रग़ाम ने घूर कर बोला था, जिस पर वो हंस दिए थे। चल आजा खाना खाते हैं। शराज साहब बोलते हुए उठ खड़े हुए थे। जी चले, ज़रग़ाम ने कहा, जिस पर वो दोनों नीचे चल दिए। खाने की मेज़ पर सब मौजूद थे। सब खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे। ज़रग़ाम की नखियों से हाले को देख रहा था, जिसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो दोपहर से ही रोती रही थी। ज़रग़ाम ने गुस्से से सर झटका, इस लड़की को रोने के अलावा कुछ नहीं आता। मैंने एक फ़ैसला किया है। आगा जान की आवाज़ पर सब इनकी जानिब मुतवज्जा हुए थे, सिवाय ज़रग़ाम के। वो बस खामोशी से खाना खा रहा था। कैसा फ़ैसला आगा जान? शाज़म शाह बोले थे। इस जुमे को हाले का निकाह होगा। आगा जान ने कहा, जिस पर हाले का तो मुँह को जाता निवाला ही अटक गया। तो हैरत से शराज शाह की तरफ देख रही थी, जो कि पुरसुकून बैठे हुए थे। बाकी किसी को खास फर्क नहीं पड़ता था। इनकी बला से मुसीबत कल की जाती आज जाए, लेकिन किससे? आगा जान हाथ ने पूछा। इन सब में सिर्फ एक वही परेशान हुआ था। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, मैं बात पक्की कर चुका हूँ। आगा जान बोले। हाले ने चेहरा झुका लिया। लेकिन आगा जान, आप ऐसे कैसे हाले से पूछे बगैर किसी भी अरे गहरे से इसकी बात पक्की कर सकते हैं? अरे कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, सबसे बड़ी बात लड़का कैसा है? हाथ ने पूछा, जिस पर नसरीन बेगम ने गूर से देखा था। भाई इसके घर वालों का तो पता नहीं, लेकिन लड़का बहुत देखा वाला है। बस मैं हाँ कर चुका हूँ। आगा जान बोले थे। लेकिन वो है कौन? हाथ ने पूछा था। भाई जब घर में रिश्ता मौजूद है तो बाहर क्यों जाना? मैंने घर में ही बात पक्की कर दी। आगा जाने का, जिस पर हाले की नज़र बेसाख्ता नाइल पर उठी थी, जिसके
अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हाले का दिल ज़ोर से धड़का था। क्या बस यही इसका मुकद्दर था? आगा जान बता भी दे, क्यों सस्पेंस फैलाया हुआ है? हाथ थपकर बोला था, वही मैं ज़रगाम की बात कर रहा हूँ। इस जुम्मे को हाले और ज़रगाम का निकाह होगा, आगा जान ने कहा, जिस पर बाकी सबके हलकों में जाते निवाले अटक गए थे। सब खाना छोड़कर आगा जान को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है बाबा जान? ज़रगाम कैसे? शाज़ल शाह हैरत से पूछने लगे थे। क्यों नहीं हो सकता? बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें सही वक्त पर अपनी फ़र्ज़ सरअंजाम दे देने चाहिए। आगा जान इत्मीनान से बोले, हाले तो बस सी ज़रगाम को देख रही थी जो सुकून से खाना खाने में मसरूफ़ था। लेकिन बाबा जान, मैंने तो ज़रगाम और अंशरा का सोच रखा था। शाज़ल शाह भी चैनी से बोले थे, जबकि अंशरा भी बस कहर बरसाती नज़रों से हाले को देख रही थी जो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी हुई थी। शाह साहब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम इस कलमोही को अपने छोटे शाह के पल्ले हरगिज़ नहीं बांधेंगे। कौसर जहाँ अटल लहजे में बोली थी। और वैसे भी आगा जान हाले ज़रगाम से पूरे 4 साल छोटी है। अंशरा और ज़रगाम का जोड़ ज़्यादा मुनासिब है। नाज़िया बेगम ने कहा था, बस खामोश, अभी मैं ज़िंदा हूँ इस घर के फैसले करने के लिए, और मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। इस जुम्मे को ज़रगाम और हाले का निकाह होगा, और अगर किसी को कोई इतराज़ है तो वो बेशक शिरकत ना करे। शराज शाह गिरज कर बोले थे, जिस पर सब एक बार फिर सहम गए थे। बाबा जान, एक बार ज़रगाम से तो पूछ लें। शाज़म शाह ने कहा, इन्हें उम्मीद थी कि ज़रगाम इनकार कर देगा। हाँ बोलो ज़रगाम, तुम्हें कोई इतराज़ है? शराज शाह ने पूछा, जिस पर सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई थी। हाले ने भी इसकी जानिब देखा था। इसे भी लग रहा था वो इनकार कर देगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं। ज़रगाम हाथ साफ करता उठ खड़ा हुआ था। हाले ने भी फटी नज़रों से इसे देखा, जबकि अंशरा ने ज़ख्मी नज़रों से इसे देखा था। तो फिर फैसला हो गया है। परसों जुम्मे को नमाज के बाद इनका निकाह होगा, और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगा जान ने जैसे फैसला सुनाया था, जिस पर सब नाचार खामोश हो गए थे। सब ख़वातीन आग बरसाती नज़रों से हाले को देख रही थी, जिसका खौफ से लो कांप रहा था। अब पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला था। आज जुम्मे का दिन था और हाले और ज़रगाम का निकाह भी था। घर में मौजूद हर ज़ी नफ्स कलस रहा था, लेकिन शराज शाह किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह होना था। सारे इंतज़ामात हाथ देख रहा था, बाकी किसी ने कुछ करने की परवाह ना की थी। आ जाओ, हाले कमरे में बैठे अपने हाथों पर लगी मेहंदी ही देख रही थी। सुबह पार्लर वाली ने इसे मेहंदी लगाई थी, और अभी वो 2 ब्यूटिशियन इसका मेकअप करने के लिए खड़ी थी। इन सबको ज़रगाम ने बुलाया था। बीबी जी, छोटे साहब ने ये आपके लिए भेजा है। मुलाज़िमा एक शॉपिंग बैग बेड पर रख कर चली गई थी। हाले गहरी सांस लेकर मेहंदी धोने के लिए उठ गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो इसके हाथों पर खूब रंग चढ़ा था, पर दिल में अजीब वीरानी सी थी। न जाने ज़रगाम का रवैया इसके साथ कैसा होता। इसकी नज़र बेड पर पड़ी शॉपिंग बैग पर पड़ी। इसने आगे बढ़कर एक बैग खोला तो इससे हैरत का झटका लगा था। अंदर एक बहुत ही नफीस वाइट फ्रॉक थी, जिसमें बहुत ही खूबसूरत सा गाउन था, जिस पर सफ़ेद मोती का काम हुआ था। साथ मैचिंग जूड़ी और साथ मैचिंग हील भी थी। हाले बेयकीनी से ये सब देख रही थी। इसे अमूमन अंशरा की उतरन ही मिला करती थी पहनने को। यहाँ साल बाद ईद पर एक जोड़ा जो कि आगा जान की तरफ से होता था। अब भी वो इस वजह से परेशान थी कि वो क्या पहने की, पर अब इस ड्रेस को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। मैडम, आप चेंज कर लें, फिर मेकअप स्टार्ट करेंगे, ब्यूटिशियन ने कहा, जिस पर वो ड्रेस उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। हाथ पता करो, ये ज़रगाम अभी तक आया क्यों नहीं? देर हो रही है। आगा जान घड़ी को देखते हुए बोले, अरे आगा जान आ जाएगा, इसकी शादी है, थोड़ा सजने संवरने तो दें। हाथ ने कहा, ये सजना संवरना औरतों का काम है, इसे बोल जल्दी नीचे आ। आगा जान ने कहा था, ये अच्छा। हाथ बोलता वो ऊपर चल दिए। इसने ज़रगाम के कमरे का दरवाज़ा नोक किया, फिर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर गोल्डन और सफ़ेद बास्केट पहन रखी थी। बालों को जल्द से सेट किए वो इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। भाई, आगा जान बुला रहे हैं। हाथ ने कहा था, आ रहा हूँ। ज़रगाम ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, फिर बाहर की जानिब चल दिया। घर में कोई भी इस शादी से खुश नहीं था। हर एक बस गुस्से और बेबसी से एक दूसरे को देख रहे थे, पर आगा जान अपनी बात पर अड़े हुए थे। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में ज़रगाम और हाले का निकाह हुआ। इस निकाह में घर के किसी फर्द ने शिरकत नहीं की थी सिवाय हाथ के। वो सबसे ज़्यादा खुश था, जबकि बाकी सब खून के आंसू रो रहे थे। निकाह के बाद आगा जान और हाथ घर की तरफ चल दिए, जबकि हाला गाड़ी में मुंतज़िर सी बैठी थी। जब ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर ज़रगाम अंदर बैठा था। इसने इसे देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा था। सारा रास्ता इनके दरमियान खामोशी ही रही थी। हाले तो बस ये सोच रही थी कि घर में पहुंचकर इसके साथ क्या होगा। खौफ से इसका बुरा हाल हो रहा था। ज़रगाम ने गाड़ी शाह हवेली के बाहर रोकी थी। वो अभी उतरे ही थे कि ज़रगाम का फ़ोन बजा। तुम अंदर जाओ, मैं कॉल सुन कर आता हूँ। ज़रगाम फ़ोन देखता हुआ बोला था, जिस पर अंदर जल्दी आगे कलमोही मेरे बेटी का हक खाकर अभी इसने हाल में कदम रखा ही था, जब नसरीन बेगम एकदम बोली थी, बेशरम कहीं की, तुझे ज़रा हया न आई? ना कि ना हो तो हमारी बच्ची की खुशियाँ खा कि। नाज़िया बेगम भी दो बदो बोली थी, जबकि हाले बस नम आंखों से इन्हें देख रही थी। बंद कर अपने ये मगरमच्छ के आंसू, दूर हो जा मेरी नज़रों से के सामने से, वरना जान ले लूँगी मैं तेरी। कौसर जहाँ ने कहा, जिस पर वो आगे बढ़ने वाली थी, जब एकदम से अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस करती उसने पीछे मुड़कर देखा तो ज़रगाम संजीदा चेहरा लिए से देख रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? ज़रगाम हाले को अपने बराबर में करता हुआ बोला था। इसने हाथ मजबूती से थामा हुआ था। छोटे शाह, इस मनोज को हमारी आंखों के सामने से दूर कर दें।
ہم سے مزید اس کا وجود برداشت نہیں ہو رہا، کوثر جہاں نے کہا تھا۔ اب تو اسے تو اب آپ سب کو برداشت کرنا پڑے گا دادی جان، کیونکہ اب تو یہ ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے گی، کیونکہ اب تو یہ اس گھر کی بہو ہے۔ تو یہ خیال اپنے دماغ سے سب نکال دے کہ حال نور یہاں سے کہیں جائے گی۔ اور ایک اور بات، حال نور اب میری بیوی ہے، اس لیے اس گھر میں موجود ہر فرد یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اب اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ زرگام سنجیدگی سے کہتے حالے کو لیے اوپر چل دیا تھا، جبکہ پیچھے سب کلس کر رہ گئے تھے۔ کچن کے دروازے میں کھڑی انشرا نے آگ برساتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، زرگام نے نرمی سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت حالے کے کمرے میں تھے، وہ چہرہ جھکائے کھڑی ہوئی تھی، نیچے ابھی جو کچھ بھی ہوا اس پر وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ زرگام غور سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ پریشان سے ہی لگی تھی۔ اس نے تھوڑی سی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، حالے نے اپنی شہد رنگ کی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں میں جھکا وہ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے حالے نور، کیا سوچ رہی ہو؟ زرگام نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں شاہ جی، وہ بولی تھی۔ حالے نور ایک بات ذہن نشین کر لو، دو چیزوں سے مجھے نفرت ہے، ایک جھوٹ سے اور دوسرا بات چھپانے سے، اس لیے یہ دو غلطیاں تو بھول کر بھی مت کرنا، سمجھی؟ اب بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ زرگام نے پہلے سخت اور آخر میں نرم لہجے میں پوچھا۔ حالے بس طرح بھیج کر رہ گئی تھی۔ حالے نور بولو بھی، کیا بات ہے؟ زرگام ایک اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولا تھا، لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ حالے کو یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے زرگام کو اس طرح بات کرتے سنا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس کے نرم لہجے سے ہمت پاتے اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، زرگام نے مسکرا کر کہا۔ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ زرگام نے پوچھا، لہجے میں وہی نرمی تھی۔ کوئی بھی اس شادی سے خوش نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں میں نے انشرا کا حق کھایا ہے، سب مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ حالے نے کہا۔ اس کا لہجہ بھی کیا تھا؟ سب؟ زرگام نے پوچھا۔ جی سب۔ کون سب؟ تمہیں کیوں پرواہ ہو رہی ہے کسی کی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں حالے جنہیں تمہارے مرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم ہو کہ ان کی باتوں کی وجہ سے رو رہی ہو۔ ادھر دیکھو میری طرف، اگر تمہیں کسی کے رویے سے فرق پڑنا چاہیے تو وہ صرف اور صرف میں ہوں، سمجھی؟ باقی کسی کے لیے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بند کرو یہ رونا۔ زرگام اس کے آنسو صاف کرتا بولا تھا۔ حالے بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے دو بول نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی، اسے ایک محافظ دے دیا تھا جو کہ اسے کچھ بھی لمحوں میں ڈھیر سا اپمان دے گیا تھا۔ حالے بے اختیار مسکرا دی تھی۔ یہ دیکھو تمہارے لیے ڈریس لائے ہوں، میری امی کی ہے۔ زرگام جیب سے یہ دیکھو تمہارے لیے لائے ہوں، میری امی کی ہے۔ جیب سے ایک ڈبی نکالتا ہوا بولا تھا جس میں خوبصورت سی انگوٹھی تھی۔ پر میں یہ کیسے؟ حالے بولتی بولتی اس کی انگوٹھی دیکھ کر زرگام نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اب تم چینج کر لو، تھک گئی ہوگی، زرگام بولتا باہر چل دیا تھا، جبکہ حالے بس حیرت سے کی مورت بنی اپنی مخروطی انگلی میں موجود انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے، ہر کوئی غصے میں تھا سوائے شیراز شاہ کے اور زرگام کے۔ وہ دونوں مطمئن ہی لگے تھے۔ زرگام کے بائیں طرف انشرا بیٹھی تھی، جبکہ دائیں طرف کی کرسی خالی تھی، اس پر عموماً ہاتھ بیٹھتا تھا، پر آج اس نے یہ جگہ خالی حالے کے لیے چھوڑ دی تھی جو کہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ ملازمہ نے میز پر ناشتہ لگا دیا تھا۔ حالے نور کہاں ہے؟ زرگام نے پوچھا، جس پر انشرا نے لب بھیجے تھے۔ جی کچن میں، بلاؤ اسے، زرگام نے کہا۔ جس پر ساری لاتی چلی گئی تھی، وہ ناشتہ بنا رہی ہے، نازیہ بیگم نے کہا، جس پر زرگام نے ایک تیز نگاہ پہ ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ سے کسی نے پوچھا شاہ جی آپ نے بلایا؟ حالے باہر آتی بولی تھی۔ اسے دیکھ کر سب نے منہ پھیر لیا۔ بیٹھو، زرگام نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں وہ حالے کچھ کہنے ہی والی تھی جب زرگام نے اسے گھورا، جس پر وہ چپ چاپ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آغا جان نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا، انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ سرخرو ہو گئے ہوں۔ سب کھانا بلائے انہیں دیکھنے میں مصروف تھے جو کہ اطمینان سے ناشتہ کر رہے تھے۔ زرگام حالے کو سرو کر رہا تھا، اس کا انداز کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ حالے جاؤ میرا بیگ لے کر آؤ، انشرا سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو وہ بولی، جس پر حالے ایک دم سے اٹھی تھی، پر زرگام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے، سمجھی؟ اپنے کام خود کرو، زرگام سخت لہجے میں بولا۔ انشرا نے قہر آلود نظر اس حالے پر ڈالی اور پھر پیر پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرو، زرگام نے نرمی سے کہا، جس پر حالے ناشتہ کرنے لگی۔ باقی سب بس آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، پر اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ زرگام ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی حالہ کو دیکھ رہا تھا جو کہ اسکول یونیفارم میں ملبوس، اس کے چہرے پر پیاری سی مسکان تھی۔ آج عرصے بعد اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد زرگام نے گاڑی اس کے اسکول کے باہر روکی تھی۔ میں لینے آؤں گا تمہیں، زرگام نے مسکرا کر کہا۔ جی ٹھیک ہے شاہ جی، اللہ حافظ۔ حالے بولتے اتر گئی۔ زرگام نے تب تک اسے دیکھا جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی، پھر گاڑی زن سے بھگا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم ظہیر نصیر، شکر ہے خدا کا کہ تمہیں بھی 2 دن بعد اپنی شکل دکھانے کا خیال آیا، ورنہ مجھے نہ جانے کیسے کیسے خیال آ رہے تھے، پر تم 2 دن سے آئی کیوں نہیں؟ حالے کے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی رمشا بولتی جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ حالے نے مسکرا کر پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم سلامت ہو نا؟ رمشا نے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں؟ حالے نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں تمہارے گھر والوں نے تمہاری کوئی ہڈی پسلی ہی توڑ نہ دی ہو۔ خیر
छोड़ो ये बताओ कि तुम आई क्यों नहीं? रिमशा ने उसे देखते हुए पूछा था। तुम बिना क्या ऊँट पटांग सोचती रहती है और मैं वैसे ही नहीं आई, हाले ने कहा था। अच्छा जी, अब तो मुझसे भी बातें छुपाओगी? रिमशा ने अफसोस से कहा था। बस ऐसी बात नहीं है यार, तो फिर असल वजह बताओ। मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा निकाह था। अच्छा किया? रिमशा एकदम से चीखी थी। हाले ने बेख्तियार कानों पर हाथ रखा था। क्लास में मौजूद कई लड़कियों ने मुड़कर इन्हें देखा था। तुम्हारा क्या था? मेरा निकाह था, हाले ने मुस्कुराकर कहा। निकाह किससे? रिमशा ने पूछा, जिस पर हाले ने निचला लब दांतों में तले दबाकर बोली थी। शाहजी से, हाले ने कहा, जिस पर रिमशा की आंखें फटने की हद तक खुल गई थी। शाहजी मतलब जरगाम भाई? उफ अल्लाह हाले, तुम्हारा निकाह जरगाम भाई से हो गया है? लेकिन कैसे, क्यों? वो तो बहुत अच्छे हैं। कुछ उल्टा सीधा मत कहना, हाले इसकी बात करते बोली। रिमशा ने चौंक कर से देखा था। रे वाह, खुदा ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक घोड़ी। मेरी बहन, वो कब से अच्छे हो गए? तुम भूल गई कितने बुरे हैं तुम्हारे घर वाले? हाँ, पर शाहजी तो ऐसे नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वाक़ई? रिमशा ने पूछा, जिस पर वो इस बात में जली लागी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। रिमशा ने दिल से दुआ दी थी। आमीन, हाले कहते मुस्कुरा पड़ी। कहाँ थे तुम सारी रात? नाज़िया बेगम ने गुस्से से नाइल से पूछा था, जो कि सारी रात के बाद अब घर आया था। दोस्तों के साथ था, नाइल ने जवाब दिया। कौन से दोस्त? नाज़िया बेगम ने पूछा था। उफ मामा, क्या तफ्तीश शुरू कर दी? अभी तो आया हूँ, हटे मुझे सोना है। देखो नायर, मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। इससे पहले कि तुम्हारे बाबा को किसी और को पता चले, सुधर जाओ, नाज़िया बेगम ने कहा, पर वो अनसुनी करता चल दिया था। अस्सलाम वालेकुम जरगाम शाम को घर आता लाउंज में बैठी कोसर जहां को सलाम करता बैठा था। वालेकुम सलाम, कोसर जहां ने मरवतन जवाब दिया था। इनके चेहरे पर वाज़ेह नाराज़गी थी, जिसे जरगाम ने बखूबी नोटिस किया था। तभी उठकर इनके बराबर ना बैठा था। उनके कंधों के गिर्द बाजू हल करके लाड़ से इन्हें देखने लगा था। क्या है? हाँ, कौसर जहाँ ने पूछा था। मेरी क्यूट सी दादी जान क्यों नाराज़ हैं अपने छोटे शाह से? जरगाम ने मुस्कुराकर पूछा था। आप तो जैसे जानते ही नहीं है ना, वो दुख पहुंचाया है आपने हमें। छोटे शाह, कौसर जहाँ ने कहा था। दादी जान, जो होना था हो गया। अब क्या सारी उम्र अपने छोटे शाह से इसी तरह नाराज़ रहेंगे? अच्छा इधर हमारी तरफ देखें, अब आपको कभी नाराज़ नहीं करेंगे, जरगाम ने कहा, जिस पर कौसर जहाँ कुछ नरम पड़ी थी। हम नहीं बोलते आपसे। अच्छा ये देखिए, हम कान पकड़ते हैं, प्लीज़ अब तो नाराज़गी ख़त्म कर दे, जरगाम बोला, जिस पर कौसर जहाँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर चपड़ लगाई थी। चल, हम भला आपसे नाराज़ रह सकते हैं? कौसर जहाँ ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा। तभी हाले पानी का गिलास लेकर वहाँ आई थी। शाहजी पानी। हाले ने गिलास जरगाम की तरफ बढ़ाया था। थैंक यू हाले। नो, जरगाम ने मुस्कुराकर गिलास थामा, जबकि कौसर जहाँ गुस्से से मुंह मोड़ के लिया था। तुम्हारी डेट शीट आ गई है? जरगाम ने गिलास वापस पकड़ा कर पूछा। जी, अगले मंगल को पहला पेपर है। तो फिर अभी से तैयारी शुरू करो, टाइम कम है। जी, हाले बोलते किचन की तरफ चलती थी। जरगाम की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। कौसर जहाँ को इसका अंदाज से एक आंख नवाया था। अच्छा दादी जान, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, जरगाम बोलता हुआ अपने कमरे की जानिब चल दिया। हाले कहाँ मर गई हो? अंशला किचन में खड़ी सलाद बनाती हाले से बोली थी। हाँ बोलो, कोई काम था? हाले ने पूछा। मेरे कपड़े क्यों इस्त्री नहीं किए तुमने? और सारी अलमारी भी बिखरी हुई है। आखिर तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? अंशला ने गुस्से से पूछा। तो वो मेरे जहन से निकल गया, मैं अभी कर देती हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अंशला बोलती बाहर निकल गई। हाले भी तेजी से सलाद काटने लगी। हाले नूर अभी वो किचन समेट ही रही थी जब जरगाम ने पुकारा था। जी शाह जी। हाले ने से पूछा, जो किचन के दरवाजे में खड़ा था। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट में रेडी होकर आओ, जरगाम पर ने कहा था। पर वो मैं हाले नूर, वो जो कुछ कहने वाली थी, इसकी आवाज़ पर चुप होगी। इसके पास से गुजर कर वो ऊपर चलती थी। वो भी मुस्कुराता हुआ गाड़ी की चाबी उंगली पर घुमाता बाहर चल दिया था। वो गाड़ी में मुंतजिर सा बैठा था जब हाले साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी थी। जरगाम ने एक नज़र से देखा। वो इस वक्त पर्पल कलर के आम से सूट में मलबूस थे, जो कि अंशरा का ही था। साथ हम रंग हिजाब किए हुए आम से हुल्ले में भी बेहद हसीन लग रही थी। जरगाम ने एक नज़र से देखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी गाँव के कच्चे रास्तों से होती हुई शहर में दाखिल हुई थी। हम कहाँ जा रहे हैं शाह जी? हम मॉल जा रहे हैं। इस वक्त क्यों? सारा दिन मेरा वक्त नहीं लगता। पहले यूं फिर आगा जान के साथ ज़मीनों पर तो तुम्हें शॉपिंग नहीं करवा पा रहा था, इसलिए सोचा क्यों ना अब ये काम कर लिया जाए, जरगाम ने मुस्कुरा कर कहा था। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, चले घर चलते हैं, हाले ने कहा। जरगाम ने इसे घूर कर देखा था, फिर गहरी सांस खारिज करता इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाले देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा मिजाज हो और थोड़े ही मैं ही खुश हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपनी जायज़ ज़रूरतों का तकाज़ा भी ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता रहा है। पहले मैं इस पर खामोश रहा क्योंकि मेरे पास कोई इख्तियार ना था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा रिश्ता बदल गया है। अब अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो इसको जवाब देना पड़ेगा, और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम मुझसे सवाल करो, ना कि फ़ज़ूल में खुद पर जबर करो, समझी? जरगाम ने इसे देखते हुए कहा था। जी समझ गई, हाले ने कहा, जिस पर वो जरगाम मुस्कुरा दिया था। ये मंज़र 2 कमरों के फ्लैट का था, जहाँ हाले वे लाउंज में बैठी हुई थी। अपने सामने मौजूद
ढेर सारे शॉपिंग बैग को देख रही थी। इन्हें शॉपिंग करते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए ज़रगाम इसे अपने साथ लिए फ्लैट पर आ गया था, जहाँ वो अक्सर शहर आकर रहता था। हाल हैरत से सारी शॉपिंग को देख रही थी, जिस चीज़ का पर इसकी नज़र उड़ती ज़रगाम इसे ले देता था। पहले वो झिझक रही थी, फिर इस ज़रगाम के काफ़ी ज़ोर देने पर वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने लगी, लेकिन थोड़ी देर तक वो बेधड़क होकर फरमाइश करने लगी, जिस पर ज़रगाम ने मुस्कुराते हुए उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई थी। फिर डिनर के बाद वो दोनों ज़रगाम के फ्लैट पर आ गए थे। इस दौरान वो हवेली और इसके मकीनों के बारे में बिल्कुल ही भूल चुकी थी। चाय पियोगी? ज़रगाम ने मुस्कुराकर पूछा। वो भी शावल लेकर आया था। ब्लैक पैंट पर ब्लैक गोल गले वाली शर्ट पहने वो आमचे उंगलियों में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जी मैं बनाती हूँ। तुम बैठो मैं बनाता हूँ, ज़रगाम बोलता हुआ अपन किचन की तरफ बढ़ गया था। रहने दे शाहजी, मैं बनाती हूँ। हाले भी किचन में आती बोली थी। सारी उम्र आपने ही तो बनानी है मैडम, अभी हमें खिदमत का मौका दे। ज़रगाम चाय का पानी चढ़ाता हुआ मुस्कुराकर बोला, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी थी। ज़रगाम ने चाय बनाई, फिर फ्रिज से चॉकलेट केक के 2 पीस काट कर प्लेट में डाले, जिस फिर सब कुछ ट्रे में रखते हुए लाउंज में आ बैठे थे। लो बताओ कैसी बनी है? ज़रगाम ने चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाया था, जैसे ही हाले ने मुस्कुरा कर थामा। ज़रगाम ने रिमोट से टीवी ऑन किया था। काफ़ी मज़े की है, हाले चाय की सिप लेती हुई बोली थी। ज़रगाम ने मुस्कुराकर सर को घुमा देकर तारीफ वसूल की थी। मेरी फेवरेट मूवी है, चलो साथ देखते हैं। ज़रगाम मूवी लगातार बोला था। हाले ने मुस्कुराकर इसे देखा, जो कि चाय पीने के साथ चम्मच से केक भी खा रहा था। फिर इसने इसके कंधे से सर टिका दिया। ज़रगाम का मुंह में चम्मच डालता हाथ रुका था। इसने हैरत से इसे देखा था। इसके देखने पर हाले ने अपनी शहद रंग आंखें चिपका ली थी। इसके अंदाज पर ज़रगाम मुस्कुराकर सर झटका, फिर दोनों टीवी देखने लगे। आगे महारानी ऐश करके सुबह हाले और ज़रगाम हवेली वापस आए, तो जैसे कि उन्हें सब इन्हीं के इंतजार में थे। नसरीन बेगम ने हाले को देखकर नफरत से कहा था, जिसने डर के हमारे साथ खड़े ज़रगाम का बाजू थाम लिया था, जो कि इस बार नजरों से सबको देख रहा था। कहाँ थे तुम दोनों? शाज़म शाह गुस्से से बोले थे। आगा जान को बता दिया था कि कहाँ थे। ज़रगाम इस बार लहजे में बोलता हुआ हाले का हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल पर आ बैठा था। हाले, जो कि जमी नजरों से सबको देख रही थी, जो कि अब खा जाने की नजरों से इसे देख रहे थे। हाँ, मुझे बता दिया था। ज़रगाम ने, इन्हें शहर में देर हो गई थी, इसलिए रात वहीं रुके थे। छोटे शाह आप किस लिए गए थे शहर? वो भी इसके साथ? कौसर जहाँ ने पहले ज़रगाम में फिर हाले को देखकर पूछा था। हाले नूर को शॉपिंग करवाने गया था, फिर इसके पेपर शुरू हो जाएंगे तो वक्त नहीं मिलेगा। ज़रगाम हाले के सामने प्लेट रखता हुआ बोला था। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी, हाले के पास तो सब कुछ है। नाज़िया बेगम ने कहा था। बिल्कुल जैसे बाकी ख़वातीन के पास सब कुछ है, पर मैंने सोचा कि वो कम है, इसलिए हम मॉल गए थे। क्योंकि वो क्या है ना, बीवियों को जितनी भी शॉपिंग करवाओ इतनी ही कम होती है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना चचा जान, आपको तो तजर्बा होगा। आखिर हर 2 दिन बाद तो आप चच्ची को शॉपिंग करवाने लेकर जाते हैं। बस इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना आपके नक्शे कदम पर चला जाए। क्या किसी को इतराज़ है? ज़रगाम ने आबरूज आकर पूछा, जिस पर हाथ और आगा जान ने सर झुकाकर हंसी रोकी थी, जबकि बाकी सब ने गुस्से से सिर झटका था। वहीं अंशरा गुस्से से प्लेट पीछे खिसकाती उठ गई थी। ज़रगाम ने हाले को देखकर दाईं आंख विंक की थी, जिस पर वो रुकने के बावजूद हंस पड़ी थी। सब आस्ता आस्ता उठ गए थे, पर वो दोनों मुस्कुराकर नाश्ता कर रहे थे। चाहे कोई कुछ भी कहे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ना था। हाय डियर कज़न, हाले किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी, जब पीछे से नाइल की आवाज़ सुनाई दी। हाले ने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा, फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। ओहो, इतना नखरा क्या बात है, ये इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? नाइल चलता हुआ उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ था, लेकिन हाले ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो न दी थी, जिस पर नाइल ने गुस्से से लब खींचा था। तुमसे बात कर रहा हूँ, नाइल गुस्से से बोला, जिस पर हाले खामोशी से इसके पास से गुजर कर बाहर जाने लगी। जब एकदम से उसने इसका दुपट्टा खींचा, हाले ने बर्क रफ्तारी से दुपट्टे को थामा, वरना इससे अलग होने वाला था। नाइल छोड़े, हाले ने समी नजरों से देखा था। क्यों, क्या हुआ? निकल की सारी अकड़, नाइल तमसर से बोला था, जिस पर हाले की आंखों में नमी थी। नाइल, मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा छोड़े, हाले ने नम लहजे में कहा था। अगर ना छोड़ू तो? वो खपाते से बोला था। नाइल छोड़े, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ, वरना मैं शादी को बता दूंगी, हाले ने धमकी दी, जैसे वो सिरे से ही हवा में उड़ा गया था। अच्छा ठीक है, बता देना, लेकिन अभी इधर आओ। तो नाइल से कलाई से खींचता हुआ बोला था। वो जो पहले सहमी हुई थी, सर अचानक अब तात पर तवाज़ुन बरकरार रख सकी, लेकिन इसके करीब होते ही एक जोरदार थप्पड़ इसे रसीद कर गई। तुम्हारी ये मजाल? नाइल गाल पर हाथ रखता गुस्से से बोला था। इसे बातों से दबोचा अपने रूबरू खड़ा कर गया था। हाले ने गुस्से से इसे देखा था। हाले बाहर से आती नसरीन बेगम की आवाज़ पर नाइल ने दरवाजे की तरफ देखा था। मौके का फ़ायदा उठाते हाले ने तेज़ से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से निकाला था। इस कोशिश में इसकी आस्तीन फट गई थी। वो बगैर पीछे देखे तेज़ी से बाहर भागी। नाइल भी होश में आता इसके पीछे लिपका हाले अपने कमरे में जाने की बजाय ज़रगाम के कमरे में दाखिल हो गई थी, जिसे देखकर नाइल भी वहीं पैर पर रखता वापस चल दिया था। क्या हुआ हाले नूर? वो जो बेड पर बैठा कोई असाइनमेंट बना रहा था, इसे यूं इतना देखकर परेशान खड़ा सा देखकर पूछने लगा था। हाले ने कुछ पल इसे देखा, फिर एकदम इसके सीने से जा लगी थी। ज़रगाम ने हैरत से इसे देखा, जो इसके सीने में मुंह छुपाए शीशे से कर रो रही थी। हाले नूर, क्या हुआ है? तो देखो मेरी तरफ। ज़रगाम ने इसे कंधों से थाम कर अपने सामने किया। हाले का चेहरा मुकम्मल आंसू से तर था। ज़रगाम की तभी नज़र इसकी फटी हुई आस्तीन पर पड़ी थी। एकदम इसकी आंखों में बेचैनी उतरी थी
اور بے یقینی اتری تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے ڈھیر سارا غصہ، کس نے کیا ہے یہ؟ زرگام نے اس کے بازو دبوچتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ چاچی وہ حالے مجھے بتاؤ، زرگام ایک دم سے بولا تھا وہ حالے نے کہا۔ زرگام آنکھوں میں ایک دم خون اترا تھا۔ اس نے جبڑے پیچھے سامنے کھڑے حالہ کو دیکھا جو کہ ابھی بھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ رونا بند کرو حالے نور، ورنہ میں گلا دبا دوں گا تمہارا، زرگام غصے سے بولا، جس پر حالے نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ ہاں، تم لڑکیوں کو صرف رونا ہی آتا ہے؟ کیوں تم لوگوں نے اپنے آنسوں کو اس قدر بے مول بنا دیا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں عورت کا رونا ایک عام سی بات بن گیا ہے؟ تم لڑکیوں نے خود کو کیوں ایک کہانی کی مظلوم سی شہزادی سمجھ لیا ہے جیسے بس ایک شہزادہ ہی بچا سکتا ہے؟ ہاں، کیوں تم لوگ اپنی ساری زندگی ایک شہزادے کے انتظار میں گزار دیتی ہو؟ کیوں تم لوگ اپنی محافظ خود نہیں بنتی؟ تمہیں تو ہر روح میں خدا نے عزت بخشی ہے، ماں کے روح میں محترم ہو، بہن کے روح میں فرض ہو، بیوی کے روح میں عزت ہو، بیٹی کے روح میں رحمت ہو۔ پھر کیوں تم نے خود کو گرا لیا ہے؟ کیوں خود کو مردوں سے کمتر سمجھ لیا ہے؟ آخر کیوں تمہیں جینے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے؟ ہاں، زرگام سے بات اپنے روبرو کرتا ہوا ایک ہی سانس میں بولتا جا رہا تھا۔ اس کی سفید رنگت میں سرخی گھل گئی تھی، تیز تیز بولنے سے اسے سانس چڑھ گیا تھا۔ حالے بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کیا کروں شاہ جی؟ حالے سر جھکا کر بولی تھی۔ اس زرگام نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں پھڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا اور متوجہ ہوا۔ حالے نور، میری جان، میری بات غور سے سنو۔ میں جانتا ہوں کہ نکاح کے بعد میں تمہارا محافظ بن گیا ہوں، تمہیں ہر دکھ اور تکلیف سے بچانا میری جان ہے، میری ذمہ داری ہے، اور میں اس ذمہ داری کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ لیکن حالے نور، میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہی اپنے محافظ بنو، اتنی مضبوط بن جاؤ کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی تمہیں توڑ نہ سکے، تمہیں کبھی کسی کے پیچھے چھپنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے سر جھکانا نہ پڑے۔ میں چاہتا ہوں حالے نور کہ ایسی بن جاؤ کہ مجھے تم پر فخر ہو، کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتا، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں نا، تم پر کوئی مصیبت نہ آنے دوں گا، اپنی حفاظت کر سکو۔ حالے نور، میں چاہتا ہوں کہ تم ایسی بن جاؤ کہ میں مان سے کہوں کہ میری حالے نور ہے جس پر زرمان شاہ کو فخر ہے۔ یہ ہے وہ لڑکی جو کہ زرمان شاہ کا فخر ہے۔ زرمان بہت مان سے بولا تھا۔ حالے بغیر پلکے جھپکائے سے سن رہی تھی۔ میں واقعی ایسی بننا چاہتی ہوں شاہ جی، مجھے آپ کا فخر بننا ہے، حالے نے کہا، جس پر زرگام مسکرا دیا تھا۔ میں بناؤں گا تمہیں ایسا حالے نور، تم ایک ہیرا ہو جسے میں تراشوں گا، پھر دیکھنا کوئی تمہاری چمک کے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ زرگام نے مسکرا کر کہا، جس پر حالے بھی مسکرا دی۔ زرگام نے اسے اپنے سالہ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آقا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ناشتے کی میز پر زرگام نے کہا، جس پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں بولو چھوٹے شاہ۔ آقا جان، میں شہر جانا چاہتا ہوں جب تک میری پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی۔ لیکن کس لیے؟ شاہزم شاہ نے پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے ہر روز جانے اور واپس آنے میں وقت دقت ہوتی ہے، ویسے بھی یہاں کا کام سارا ہاتھ سنبھالے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے جانے سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ زرگام نے کہا، ٹھیک ہے چھوٹے شاہ، جیسا آپ کو مناسب سمجھے۔ تو پھر ٹھیک ہے حالے نور، تم اپنا اور میرا سامان پیک کر لو، ہم صبح نکلیں گے۔ زرگام نے کہا، جس پر اب کی بار سب کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے۔ کیا حالے بھی ساتھ جائے گی؟ نسرین بیگم نے چل کر پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، اب چونکہ اس کے بھی پیپر ختم ہو گئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا ایڈمیشن بھی شہر کے کسی کالج میں کروا دو، ایسے میں مجھے بھی آسانی رہے گی، زرگام نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ پر بس اب پلیز اور کچھ نہیں، کسی کے بولنے سے پہلے ہی زرگام نے کہا، جس پر سب نچار خاموش ہو گئے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ نائل نے ڈیرے میں داخل ہوتے آدمی سے پوچھا تھا، جنہوں نے اس کے پوچھنے پر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، نائل غصے سے بولا۔ ان آدمیوں نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر ایک دم اس کی طرف بڑھے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ نائل ان سب لوگوں جو کہ انہیں بازو سے پکڑ چکے تھے، پھر دیکھتے دیکھتے انہوں نے کافی اچھی طرح اس کی دھلائی کر ڈالی، پھر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ نائل زمین پر گرا تھا۔ جبکہ پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زرگام کھڑا تھا۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس زمین پر بیٹھا۔ آئندہ میری بیوی کی طرف دیکھا تو جان سے جاؤ گے، زرگام آگ سے لہجے میں بول کر واپس چل دیا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں زرگام، اس کا حساب سو سمیٹ لوں گا۔ نائل اسے جاتے ہوئے دیکھ بول رہا تھا۔ ٹھا ٹھا۔ تیسرے فائر کے بعد زرگام نے پاس کھڑی حالے کو دیکھا، جو کہ کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ وہ دونوں اس وقت زرگام کے خریدے گھر کے بیسمنٹ میں تھے۔ زرگام نے اپنی یونٹ کے نزدیک گھر لیا تھا، حالے کا ایڈمیشن بھی قریبی کالج میں کروا دیا تھا۔ دن میں وہ دونوں پڑھتے تھے اور رات میں زرگام حالے کو مارشل آرٹ سکھاتا تھا۔ اب تمہاری باری۔ زرگام نے حالے کے ہاتھ کانوں سے ہٹا کر کہا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا شاہ جی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، یقین کرو، یہ کاٹتی نہیں ہے، زرگام نے مسکرا کر کہا۔ نہیں شاہ جی، یہ لڑکوں والی چیز ہے۔ اس پر کہاں لکھا ہوا ہے یہ لڑکوں والی چیز ہے؟ لڑکی اٹھائے گی تو لڑکیوں والی ہو جائے گی۔ لو پکڑو، زرگام نے کہہ کر گن اسے تھما دی، پھر کندھے سے تھام کر اس کا رخ سامنے رکھی بوتل کی طرف کیا تھا۔ حالے نے گن پکڑا ہاتھ سیدھا کیا۔ زرگام نے دیکھا اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ زرگام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا گن پکڑا ہاتھ تھاما تھا۔ آنکھیں کھول کر نشانہ لو۔
वो बोला था, आंखें खोल कर ही तो कर रही हूँ, मेरा मतलब है गौर से देख कर निशाना लो। शाहजी, मुझसे नहीं होगा, होगा हाले ज़रूर होगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक तुम सीख नहीं जाती। शाहजी, मुझे गोली से डर लगता है, हाले ने फिर से कहा, इसलिए मैंने तुम्हें बंदूक पकड़ाई है, गोली नहीं। लेकिन अगर गोली मुझे लग गई तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ज़रगाम बोला। हाले शौक से मुड़ी थी, इसे देखा, इसके तासुर बिल्कुल नॉर्मल थे। आप दूसरी शादी करेंगे? अगर तुमसे फायर निशाने पर लगा तो नहीं, अगर ना लगा तो हाँ, ज़रगाम ने कहा, जिस पर हाले ने गुस्सेली निगाह इस पर डाली, फिर सारा फोकस से सामने रखी बोतल पर किया था। ठा की आवाज़ के साथ ही बोतल के छन से टूटने पर हाले ने फातिहाना नज़रों से ज़रगाम को देखा, जिसने दादाती नज़रों से उसे देखा था। चलो, फिर से ज़रगाम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले ने भी मुस्कुरा दी थी। ये तो सच था, अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। नाइल अशरा के कमरे में दाखिल हुआ था। दफ़ा हो जो यहाँ से, मेरा मूड पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, अशरा बोली थी। अच्छा, और वो क्यों? नाइल ने इसे देखते पूछा। तुमसे मतलब? शक्ल गुम करो। वो इतना गुस्सा क्यों? कहीं तुम्हें इस बात का गुस्सा तो नहीं है कि ज़रगाम हाले का हो गया है? तुम जानते हो या मैं तुम चाहते हो या मैं खुद तुम्हें निकालूं? अशरा गुस्से से बोली थी। मुझे निकालने का क्या फ़ायदा होगा? निकालना ही है तो हाले को निकालो ज़रगाम की ज़िंदगी से। नाइल बोला। मतलब? अशरा ने नासमझी से पूछा। तब वही मतलब तो साफ है, अगर हाले से ज़रगाम की ज़िंदगी में ना होती तो फिर मुमकिन है कि ज़रगाम तुम्हारा हो जाए। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? अशरा ने पूछा, जिस पर नाइल के होंठों पर शातिराना मुस्कुराहट आ गई थी। बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना, नाइल बोला, जिस पर इसने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया था। बिल्कुल नहीं शाहजी, मैं इस पर कभी नहीं बैठूंगी। हाले ने साफ इनकार किया था। हाले, नोट बहस नहीं करो, चलो शाबाश बैठो। ज़रगाम बोला था। नहीं नहीं शाहजी, ही मैं नहीं बैठ सकती। हाले बोली थी। नहीं गिराएगा? ज़रगाम बोला था। और अगर गिरा दिया तो? हाले बोली थी। और अगर ना गिराया तो? नहीं शाहजी, गाड़ी चलानी सीख ली है, गन चलानी सीख ली है, और भी जो कुछ आपने बोला है मैंने सीख लिया है, लेकिन इस घोड़े पर मैं कभी नहीं बैठूंगी। हाले ने साफ इनकार किया था। वजह? ज़रगाम ने पूछा। बस मेरी मर्जी। हाले सीने पर बाजू लिपटते एक अदा से बोली थी, जिस पर ज़रगाम मुस्कुरा दिया था। अपने साले ज़रगाम शाह, अभी आपकी मर्ज़ी नहीं मेरी मर्ज़ी चलेगी, समझी, इसलिए बगैर चूचरा किए बैठो इस पर। शाहजी, हाले ने मुंह बना कर इसे देखा था, पर ज़रगाम ने एक ना सुनी। मैं गिर जाऊंगी। हाले घोड़े पर बैठती बोली थी। कोई बात नहीं, इंसान गिर कर ही सीखता है, हर चोट हमें सबक देती है, चलो शाबाश। ज़रगाम ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर हाले ने हिम्मत बांधी थी। पहले तो घोड़े ने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया, लेकिन बाद में इसकी रफ्तार में तेज़ी आ गई। वही की बुरी किस्मत, हाले वाकई ही नीचे गिर गई थी। आओ चाहे टांग पकड़ते हुए बोली थी। तुम ठीक हो? ज़रगाम ने इसके सर पर पहुँच कर पूछा। हाले ने टेढ़ी नज़र से उसे देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादा लगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, हर चोट से इंसान सीखता है, हाले ने मुस्कुराकर कहा। वाकई? तो फिर बताओ, इस चोट से तुमने क्या सीखा? यही कि आइंदा मर जाना, लेकिन शाहजी की कोई बात ना सुनना, वरना अगली दफ़ा वाकई टांग तरवा लोगी। हाले ने घूर कर इस देखा था, जबकि इसकी बात पर वो हंस पड़ा था। चलो उठो, ज़्यादा लगी तो नहीं? फिर से सोचिएगा भी मत कि मैं दोबारा इस बदतमीज़ घोड़े पर बैठूंगी। मैं तो चली आपका करे घोड़ा सवारी, बढ़िया है, अर्तुगरुल गाज़ी हो न हो। हाले बोलती वहाँ से चलती थी, जबकि पीछे काफ़ी देर वो हंसता रहा था। नल, क्या ये सही है? अंशला ने फ़ोन हाथ में पकड़ कर पूछा था। बिल्कुल सही है, वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। नल ने मुस्कुरा कर कहा था, जिस पर अंशला ने कुछ पल सोचा, फिर फ़ोन बंद पर नंबर मिलाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आगा जान। फ़ोन में दरगान की आवाज़ गूंजी थी। हेलो शाहजी, वो आगा जान अंशला परेशानी से बोली थी। नाल ने मुस्कुराकर इसकी एक्टिंग देखी थी, जबकि दूसरी तरफ ज़रगाम एकदम से खड़ा हुआ था। इसके अंदाज पर हाले भी चौंकी थी। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? आगा जान कहाँ है? ज़रगाम ने फिक्रमंदी से पूछा था, जबकि आगा जान के जिक्र पर हाले ने भी परेशानी से इसे देखा था। शाहजी, वो आगा जान की तबीयत बहुत ख़राब है। आप और हाले प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। अंशला ने कहकर बगैर इसकी सुने बगैर कॉल काट दी थी। फिर एक नज़र पास कर नाल को देखा, जो कि दादाती नज़र से उसे देख रहा था। फिर गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। शाहजी, प्लीज़ गाड़ी की स्पीड कम करें, मुझे डर लग रहा है। हाले ने ड्राइविंग सीट पर बैठे ज़रगाम से कहा, जो फुल स्पीड पर गाड़ी भगा रहा था। नहीं हाले नूर, मुझे जल्द से जल्द आगा जान के पास पहुंचना है। जब तक इन्हें देख ना लूँ मुझे चैन नहीं आएगा, ज़रगाम बोला, जिस पर हाले नाचार खामोश हो गई थी। तभी एक गाड़ी बिल्कुल इनके पास आकर बराबर में आई थी, जिसमें 3 अपराधी सवार थे। वो गाड़ी बिल्कुल इनकी गाड़ी के बराबर जा रही थी। हाले को कुछ अजीब लगा था। तभी साथ वाली गाड़ी की पिछली सीट से किसी ने शीशा नीचे किया। हाले की आंखें फटने की हद तक खुल गई थी, जहां वो शख्स इनकी गाड़ी पर गन तान रहा था। शाहजी, हाले एकदम चीखी थी। इस शख्स ने इसकी गाड़ी पर फायर कर दी थी। एक के बाद एक 3 फायर ज़रगाम को लगे थे, जबकि एक गोली हाले को बाजू चिर गई थी। हाले तो नीचे झुको ज़रगाम पड़ा, जिसके जिस्म से खून रस रहा था। एकदम इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। गाड़ी से समझी न गई, सामने वाली गाड़ी से टकरा गई थी। आखिरी मंजर जो ज़रगाम ने बेहोश होने से पहले देखा था, वो साथ वाली
सीट पर बेहोश पड़ी हालत थी, इसके माथे से खून बह रहा था, बाजू भी लहू-लुहान था, इर्द-गिर्द शोर मचता जा रहा था, आस्ता-आस्ता ज़रग़ाम होशो-हवास से बेगाना होता गया। ये मंज़र शाह हवेली की दूसरी मंज़िल पर मौजूद वसीअ और इस कमरे का है। ये कमरा बाकी कमरों की निस्बत बड़ा और शानदार था। कमरे के बीचों-बीच बड़े बेड पर ज़रग़ाम चढ़ लेटा था। चेहरा काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, इसकी सफ़ेद रंगत पीली पड़ चुकी थी, कसरती जिस्म भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। चेहरे पर शेप काफ़ी बढ़ चुकी थी, रफ्तन इसकी आँखों में जंबिश हुई थी। आस्ता-आस्ता इसने आँखें फाड़ की थी और आस-पास से नज़र दौड़ाई थी। धीरे-धीरे इसके हवास बहाल होते जा रहे थे। वो कई तरह की मशीनों में जकड़ा हुआ था। इसने उठने की कोशिश की, पर जिस्म में सकत ना थी। इसने सर वापस तकिए पर रख दिया था। इसने एक नज़र अतराफ में दौड़ाई थी। ये इसका कमरा था। वो इस वक्त शाह हवेली में था, पर इसे अपना कमरा काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। ज़रग़ाम ने एक नज़र दरवाज़े को देखा, जहाँ कोई उडेर उम्र खातून चलती हुई आ रही थी। इसके हाथ में पानी से भरा हुआ जग था। इसने एक नज़र दरवाज़े को देखा, जहाँ कोई उडेर उम्र खातून चली आ रही थी। इसके हाथ में पानी भरा जग था। ज़रग़ाम ने पहले इसे कभी नहीं देखा था। अंदर दाखिल होते इसने इस खातून ने नज़र उठाकर इसे देखा तो जैसे इसका सांस सीने में अटक गया था। इसके चेहरे पर वाज़ह बेयकीनी थी। साईं, आप हैरानगी के आलम में इसके हाथ से पानी का जग छूटकर ज़मीन पर गिरता चकनाचूर हो गया था। आप कौन? ज़रग़ाम की पूरी बात होने से पहले ही वो तेज़ी से बाहर निकल गई थी। ज़रग़ाम ने हैरत से इसकी कार्रवाई देखी, फिर उठना चाहा, पर इसकी टाँगें हरकत नहीं कर रही थीं। तर्क कर इसने तकिए से सर टिका लिया था। वो बेगम सरकार शाहसाई को होश आ गया, खानम भी ने कहा, जिस पर इसके चेहरे पर वाज़ह हैरत उभरी थी। वो बगैर किसी तरफ देखे तेज़ी से बाहर निकली थी। इसने तकरीबन भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ी। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। इसने दूसरी मंजिल पर पहुंचकर पहले कमरे का दरवाज़ा खोला। ज़रग़ाम ने गर्दन मोड़कर दरवाज़े की सीम देखा था, जहाँ सफ़ेद रंग का सूट पहने, दाएं तरफ स्याह शॉल डाले, शहद रंग आंखों वाली लड़की खड़ी हुई थी। इसका सांस फूला हुआ था। सफ़ेद दुपट्टे से इसके स्याह बाल नज़र आ रहे थे। इसके चेहरे पर वाज़ह बेयकीनी थी। अभी वो कदम आगे बढ़ाई कि ज़मीन पर टूटा हुआ कांच देखकर वह एहतियात से चलती उसके पास आ बैठी। आप उठ गए? इसने ज़रग़ाम का हाथ थामते हुए पूछा। लहजे में खुशी झलक रही थी, जबकि ज़रग़ाम ने पहले इसे देखा, फिर अपने हाथ को जो उसने थाम रखा था, फिर एकदम अपना हाथ इसे छुड़वा लिया, जबकि इसके अमल पर मुक़ाबिल की आंखों में हैरत थी उभरी थी। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? ज़रग़ाम ने सख्त लहजे में पूछा। तो आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वो खामोश, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और मैं यहाँ कैसे आई? हम लोग तो गाँव जा रहे थे। जब ज़रग़ाम बोलता-बोलता रुका था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इस लड़की ने धीरे से कहा था, जिस पर ज़रग़ाम के सामने हाले का चेहरा लहराया था। वो एकदम से इसका दिल काँपा था। हाले नूर, मेरी हाले नूर कहाँ है? वो भी गाँव में थी, वो भी गाड़ी में थी, इसे चोट लगी थी। कहाँ है वो? इसे कुछ तो हुआ था, तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी हाले नूर? ज़रग़ाम एकदम बेचैनी से पूछा, जिस पर वो सर झुकाए धीरे से मुस्कुरा दी थी। नहीं शाहजी, आपकी हाले नूर को कुछ नहीं हुआ। इसने नरमी से ज़रग़ाम के गाल पर हाथ रखा, जबकि इसकी बात पर ज़रग़ाम ने चौंक कर इसे देखा था। ये लहजा, ये अंदाज़, ये आँखें, सब कुछ कितना अपना-अपना सा था। हाले नूर, ज़रग़ाम बेयकीनी से बोला, जिस पर हाले नूर ने हाँ में सर हिलाया था। आप एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गए थे शाहजी, आप पिछले 7 साल से कोमा में थे, हाले ने धीरे से कहा। ज़रग़ाम के चेहरे पर वाज़ह बेयकीनी थी। मैं 7 साल से कोमा में था, पर कैसे? ज़रग़ाम ने इसके हाथ थामते हुए फ़िक्रमंदी से पूछा था, इससे पहले कि हाले कुछ कहती। दरवाज़ा नॉक हुआ। हाले ने नरमी से ज़रग़ाम के हाथों से अपना हाथ निकाले, फिर उठ खड़ी हुई थी। आ जाएं, बेगम सरकार आपको हाथ साईं बुला रहे हैं। मुलाज़िमा ने इत्तला दी थी। ठीक है, ये कांच उठाओ। हाले बोलती हुई आगे बढ़ने लगी, जब ज़रग़ाम ने एकदम इसका हाथ पकड़ा था, जिस पर हाले ने इस बार नज़र से देखा था। वो कहीं से भी वो मासूम सी हाले नहीं लग रही थी, बल्कि इस वक्त वो ज़रग़ाम को अजनबी लग रही थी। कहाँ जा रही हो? कुछ काम है शाहजी, आप आराम करें। हाले बोलती हुई दुपट्टा ठीक करती बाहर चल दी। ज़रग़ाम को इसका लहजा अजीब और रूखा सा लगा था। दिल में एक टीस सी उठी थी कि हाले के लिए वो बेईमानी हो गया था। इसने ज़ख्मी नज़रों से बंद दरवाज़े को देखा, जहाँ से अभी वो गई थी, और फिर सख्ती से अपनी आंखें मीच ली थी। न जाने इन 7 सालों में क्या कुछ हो गया था, जिससे ज़रग़ाम बेखबर था। तो तुमने सोच लिया है कि तुम भाई को सब कुछ बता दोगी? हाथ ने अपने साथ बैठी हाले से पूछा था। वो दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए थे, जो कि अभी भी शाह हवेली में दाखिल हुई थी। बताना ही पड़ेगा, शाहजी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, हाले ने कहा था। हाले प्लीज़ ज़रा एहतियात करना, तुम जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है। हाँ मुझे बहुत याद है, फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगी। हाले बोलती अंदर बढ़ गई थी। ज़रग़ाम कमरे के बाहर पहुँच कर वो कुछ देर रुकी, फिर गहरा सांस लेते अंदर की जानिब दाखिल हुई थी। वो बेड पर लेटा घड़ी देखते हुए शायद इसी का इंतज़ार कर रहा था। आज तुम्हें देर हो गई? ज़रग़ाम का लहजा ज़रग़ाम ने पूछा। लहजा बेलचक था। हाले ने गला तर किया था। जी ट्रैफिक जाम थी। हाले बेड पर बैठी बोली, जिस पर ज़रग़ाम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। इसने एक नज़र इसके स्पॉट चेहरे को देखा। जहाँ आज वो सजाने बगैर इसे मानने वाला नहीं था। तो फिर शुरू करें? ज़रग़ाम ने पूछा। जी। हाले ने गहरी सांस लेते हुए कहा था। तो फिर ठीक है, मैं पूछूंगा, तुम सच सच बताओगी? ओके, ज़रग़ाम ने कहा था। जी। सुबह सुबह कहाँ जाती हो?
इसका लहजा बार था। गांव के प्राइमरी स्कूल को हाथ ने हाई स्कूल में तब्दील कर दिया है। शुरू में बहुत कम बच्चियां पढ़ने आती थी क्योंकि लड़कियों को तालीम दिलवाना गांव में मायूब समझा जाता है। इसलिए सरपंच बनते ही हाथ ने पूरे गांव में स्कूल बना दिया कि हर लड़की को तालीम हासिल करना लाजिम होगा। इस फैसले की बहुत मुखालिफ की गई और बहुत से लोगों ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन हाथ के सख्ती करने पर लोग न चाहते हुए भी मान गए थे। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इनके बच्चे स्कूल जाएं। बहुत सी माएँ अपने बच्चों के अपने शोहर के इल्म में लाए बगैर स्कूल भेजती हैं। इसलिए हर रोज़ कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है स्कूल में। इसलिए मैं और हाथ ने तय किया है कि जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती मैं वहीं रहूंगी, ताकि अगर कोई मसला हो तो मैं संभाल सकूँ। हाले बोलकर खामोश होगी, फिर एक नज़र जरगाम को देखा। बस वो स्पॉट चैटर्जी से सुन रहा था। स्कूल से फारिग होकर उसके बाद कहाँ जाती हो? वहाँ से सीधा शहर जाती हूँ, वो हाले बोलती हुई खामोश होगी। आगे बोलो, जरगाम ने सख्त लहजे में बोला। हाले के माथे पर पसीना आने लगा था। मैंने आपसे एक झूठ बोला था, हाले ने डरते हुए बोला। मैं सुन रहा हूँ। वो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? ये तो इस बात पर मुनहसर है कि तुमने झूठ बोला है। तुमने क्या मुझसे झूठ बोला है? वो शाहजी मैं शहर आगा जान को देखने जाती हूँ, हाले ने कहकर आंखें मीच ली थी, जबकि जरगाम एकदम सीधा हुआ था। क्या आगा जान जिंदा है? बोलो, हाले ने। वो जरगाम बेचैनी से बोलने लगा था। जी, वो आगा जान को हमने शहर भिजवा दिया था जब आप होश में आए थे, हाले ने झुके सर के साथ कहा था। क्यों? जरगाम ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने कहा था कि आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि किसी भी शौक से आप वापस कोमा में जा सकते हैं। इसलिए आपके होश में आते ही हमने आगा जान को शहर भिजवा दिया ताकि आप इन्हें इस हाल में ना देख सकें। क्या मतलब? जरगाम ने कहा पूछा था। शाहजी, इस एक्सीडेंट से एक माह बाद बहुत कुछ बदल गया था। माजी, डॉक्टर साहब, जरगाम कब तक होश में आएगा? शाह ने बेचैनी से पड़े जरगाम को देखकर पूछा था। वैसे वापस शाह हवेली में ले आए थे। देखिए, कुछ नहीं कह नहीं सकते, एक्सीडेंट बहुत सीरियस था और ऊपर से गोली लगने से इनकी कंडीशन और ख़राब हो गई है। इनका होश में आना कोई मौजज़ा ही हो सकता है, डॉक्टर ने कहा, जिस पर दरवाजे में खड़ी अंशरा की आंखें बेहतियात नम हुई थी। आंसू साफ करती तेज से नाल के कमरे की तरफ के बाहर पहुंची थी। इसने जोर से दरवाज़ा नॉक किया। क्या मुसीबत है? कौन मर गया है जो इस तरह दरवाज़ा बजा रही हो? नायल ने बाहर निकलता गुस्से से बोला था। अंशरा से अंदर धक्का देती हुई खुद भी अंदर आ गई थी। इसके अंदाज पर जरगाम के कमरे की तरफ जाती हाले चौंकी। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, जहाँ वो दोनों आमने सामने खड़े थे। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? नायल गुस्से से अंशरा के को देखते बोला था और फिर अगले ही लम्हे चटाक नायल मुंह पर हाथ रखे हैरत से देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम बेगैरत इंसान, मैंने तुम्हारी मदद की ताकि तुम हाले को रास्ते से हटाओ, ना कि शाहजी को। अंशरा गुस्से से बोली, जब किसकी बात पर बाहर खड़ी हाले को लगा सातों आसमान इसके सर पर आ गिरे हो। हाँ, तो नहीं मरी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, तुमने अपना मुंह बंद रखोगे समझे? अगर हाले जिंदा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। नाइल बोला था। तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है समझे, और बहुत गलत किया मैंने तुम्हारा साथ देकर। सब समझती हूँ मैं, तुमने जानबूझकर शाहजी को मरवाना चाहा क्योंकि हाले पर नजर है तुम्हारी। हाँ, तो गलत क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जरगाम को अपनी इतनी बेइज्जती करने के बाद यूं ही छोड़ दूंगा? बहुत धड़ल्ले से कहकर गया था ना कि दूर रहो मेरी बीवी से। अब रख कर दिखाए मुझे दूर अपनी बीवी से। नायल खबासे से बोला था। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझसे गलती हुई कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब देखना मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी असर सबके सामने लाती हूँ। अंशरा बोली, जिस पर नायल की आंखों में एकदम सुर्खी उतरी थी। अगर ऐसा सोचा भी तो जान से मार दूंगा तुम्हें। समरी नान ने इसके बाल मुट्ठी में दबोचे थे। आज जंगली इंसान छोड़ो मुझे। अंशरा खुद को छुड़वाती हुई बोली थी। इससे पहले कि नायल कुछ बोलता, किसी ने कॉलर से पकड़ के इसे अपनी जानिब खींचा था। बगैर इसे समझने का मौका दिए बगैर हाले ने इसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। बेगैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाहजी को छूने की? हाले ने मुंह पर हाथ रखे खड़े नायल से पूछा था, जो भीगे हुए चेहरे से इसे देख रही थी। आंखों में नफरत थी। तुम्हें नायल ने इसे पर हाथ उठाना चाहा, पर हाले ने इसका हाथ हवा में ही रोक लिया था। फिर इसकी कलाई मरोड़ी। नायल ने चौंक कर इसे देखा था। इसका ये रूप इसके लिए नया था। इसने अपने हाथ चढ़वाना चाहा, पर हाले की गिरफ्त सख्त थी। वो कहीं से भी वो कमजोर सी हाले नहीं लग रही थी। हाले ने झटके से इसका हाथ छोड़ा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नहीं, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हाले बोलती हुई अंशरा का हाथ पकड़े नीचे चल दी थी, जबकि नायल ने चेहरे पर हाथ फेरा था। फिर एकदम इसकी आंखों में खून उतरा था। ड्रेसिंग टेबल से अपने गन निकाले वो इनके पीछे लिपका था। आगा जान। हाले ने नीचे आते लाउंज में बैठे आगा जान का पुकारा। बाकी सब घर वाले भी इधर ही मौजूद थे। इन सब की आवाज़ पे मतवज्जा हुए थे। क्या बात हाले, क्यों चीख रही हो? ये सवाल अपनी बेटी से पूछे। हाले बोले, जिस पर सबकी नजरें थी। क्या किया है इसने? इसने और नायल ने हमें मारने की कोशिश की। मेरे शाहजी की हालत इसकी वजह से है। अंशरा, ये क्या कह रही है? शाह ने पूछा था। अंशरा, कुछ बोलो भी। हाले क्या कह रही है? बाबा, ये सच है। नाइल के कहने पर मैंने शाहजी को कॉल करके यहाँ बुलाया था। इसने कहा था कि रास्ते में इन पर फायरिंग करवा कर वो हाले को मरवा देगा, लेकिन इसने जानबूझकर शाहजी पर हमला करवा दिया। उनसे बदला लेना चाहता था। मुझे सच में
चटाक रांशा के बाकी अल्फाज मुंह में रह गए थे जब एक जोर थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। और थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं, कोसा जहां थी। बगैर तो तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बच्चों की तरफ मैली आंखों से देखने की? कोसा जहां गुस्से से बोली थी। नासिर बेगम के चीखने पर सबने सीढ़ों की तरफ देखा था जहां नायल हाथ में गन पकड़े तक खड़ा हुआ था। इसका निशाना हाले थी। हाले फटी फटी कोसे से देख रही थी जहां कोसा जहां एकदम से इसकी ढाल बनकर सामने आई थी। गोली इनके सीने पर लगी थी। अम्मा जान शाजन शाह एकदम इनकी तरफ लिपके थे जबकि आगा जान पर सर दिल पर हाथ रखे सोफे पर डह गए थे। अम्मा जान खुदा के लिए आंखें खोले। शाजन शाह का चेहरा तबतबाते हुए बोले थे। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाले कोसा जान ने पुकारा। वो नम आंखों से देख रही थी। इनके पास घुटनों के बल बैठी थी। बेटा मुझे माफ कर दो, कोसा जहां बमुश्किल बोली थी। हाले ने एकदम इनका हाथ पकड़ा था। नानो खुदा के लिए ऐसा न कहे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। हाले इनका हाथ चूमते बोली थी। कोसा जहां जैसे यही अल्फाज सुनने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इसके गाल पर अपना हाथ धरा, फिर आंखें वहीं बंद कर ली। हाले बोलकर खामोश होगी, फिर एक नजर से देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शाहजी प्लीज ऐसा मत करे। हाले ने इसकी आंसू साफ करते बोली थी। जरगाम ने गिली सांस अंदर खींची थी। नाल के साथ क्या हुआ? वो तब तो भाग गया था लेकिन बाद में अरेस्ट हो गया। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके कि जेल जाने के बाद शाहजहां मामू और ममानी दोनों बैरूनी मुल्क चले गए थे। शाहजहां मामू ने अपने एक जाने वाले के बेटे से अंशला की शादी करवा दी थी। वो भी 6 माह पहले अपने शोहर के साथ बैरूनी मुल्क चली गई है। हाले बोली थी। और आगाजान को आधे जिस्म का फालिज हो गया था, इसलिए आपको ये होश में आते ही हमने इन्हें शहर भिजवा दिया। आले ने कहा। जिस जरगाम ने सर हिला दी। इसकी आंखों में अभी भी नमी थी। मुझे आगाजान से मिलना है। जी ठीक है, इस हफ्ते आपके चेकअप के लिए भी जाना है तो वापसी पर आगाजान से मिल लीजिएगा। आले बोली जिस पर जरगाम ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। रुको, शाम में तुम शहर से आती हो, फिर एक जनान खाने में होती हो, लेकिन रात के खाने के बाद कहाँ जाती हो? वो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। दिन में मसरूफियत की वजह से मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। हाले ने मुस्कुरा कर कहा था। हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट? आपकी इत्तला के लिए बता दूँ, मैं इस मुल्क की जाने मानी सर्जन हूँ डियर हस्बैंड। हाले ने एक अदा से कहा था। जरगाम ने पूरी आंखें खोल कर से देखा था। वाकई? बिल्कुल, हाले बोली। जरगाम ने कुछ पली से देखा, फिर एकदम इसे खुद में बींच लिया था। हाले ने इसके सीने से सर उठाकर हैरत से देखा। बेगम अकेली जान और इतने काम, और इस टाइम टेबल में बेचारे शोहर को क्यों नजरअंदाज किया? हाँ, जरगाम ने मसनूई गुस्से से पूछा था। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं आपके पास आती हूँ आप पूछते थे कहाँ थी, कहाँ जा रही थी, और आपसे मैं झूठ बोलने का मेरा दिल नहीं चाहता था। इसलिए तुमने सोचा क्यों ना शादी के मुंह ही ना लगाया जाए ताकि इनके सवालों के जवाब ही ना देने पड़े। जरगाम बोला जिस पर हाले ने निचला लब दांतों तले दबा कर इसे देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। जरगाम ने घुड़सी से नवाजा, फिर इसका माथा चूमा जिस पर वो मुस्कुरा दी थी। 3 साल बाद। हेलो चाची, हाले कॉल रिसीव करते बोली थी। वो भी एक सर्जरी के बाद अपने कैबिन में आकर बैठी थी जब फोन पर जरगाम कितनी सारी मिस्ड कॉल देकर चौंकी थी। कहाँ तुम? जरगाम ने गुस्से से पूछा था। हॉस्पिटल, अभी के अभी घर आओ, जरगाम ने कहकर कॉल काट दी थी। हाले ने कान से फोन हटाकर देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। यकीनन जरगाम से बच्चे नहीं समझ रहे होंगे इसलिए इतने गुस्से में है। मुस्कुराती हुई अपने कैबिन से निकली। तकरीबन 15 मिनट बाद वो शाहजहां हवेली में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। हाले ने अंदर दाखिल होते हुए आगा जान को सलाम किया था जो कि लॉन्च में व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। वो बात नहीं कर पाते थे, बस इशारों से जवाब देते थे। पास ही रिमशा बैठी अपने 2 साला उमर को चावल खिला रही थी। वालेकुम सलाम, शुक्र है खुदा का कि तुम आ गई, और अपने कमरे में जाकर देखो क्या उधम मचाया हुआ है तुम्हारे लाडलो ने। रिमशा ने मुस्कुरा कर कहा जिस पर हाले मुस्कुराते हुए ऊपर चलती थी। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरत का झटका लगा। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। बेड के तकिए जमीन पर पड़े थे, सलामी दे रहे थे। बेडशीट नीचे फर्श पर झूल रही थी। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें कुछ ऊपर तो कुछ नीचे थी। इन सब के बीचों बीच जरगाम अपने दोनों जुड़वां बेटों हमजा और अली को उठाए खड़ा था। ये सब क्या है? हाले ने हैरत से पूछा जबकि इसकी आवाज़ पर जरगाम गुस्से से पलटा था। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, आपने ये 2 जिन खुलेआम छोड़े हुए हैं और पूछ रही हो कि ये सब क्या है? सारी दुनिया का ठेका ले रखा है तुमने। मुझ गरीब को भी पूछ लिया करो कभी। जरगाम तो जैसे फट पड़ा था। उफ़ शाहजी, ऐसा भी क्या हो गया? और ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? हाले ने पूछा था। ये अपने नमूनों से पूछा। इन्हें बिठा कर शावर लेने गया था। वापस आया तो ऐसा लगा कि शायद कमरे में तूफान आया है। 10 मिनट में हशर नशर कर दिया उन्होंने हर चीज़ का, और अगले 30 मिनट में मेरा भी। जरगाम बोला जिस पर हाले मुस्कुराती जबकि जरगाम के माथे पर मजीद बल पड़े थे। किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? जरगाम ने गुस्से से पूछा जिस पर हाले एकदम संजीदा हुई थी। अच्छा, आप इन्हें मुझे दे जाएं, थोड़ी देर आगा जान के पास चले जाएं, तब तक कमरा साफ कर लूँ और इन्हें भी नहला लूँ। हाले इससे दोनों को लेती हुई बोली जिस पर जरगाम सर हिलाता नीचे चल दिया था। इसने एक नज़र घड़ी को देखा जहाँ 9 बज रहे थे, फिर अपने दोनों बच्चों को उठाए वॉशरूम की तरफ चल दी थी। तकरीबन 10 बजे जरगाम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में कदरे अंधेरा था। सिर्फ साइड लैंप ऑन था। पूरा कमरा असल हालत में वापस आ चुका था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
بیڈ پر اس کے دونوں جن مزے سے سو رہے تھے، پاس ہی حالے بیٹھی پیاس سے ان کے بال سلا رہی تھی۔ سو گئے تمہارے نمونے؟ زرگام بیڈ پر بیٹھا ہوا بولا تھا۔ جی سو گئے ہیں، ویسے ماننا پڑے گا 1 گھنٹے میں پورا کمرہ صاف کر لیا، بچوں کو بھی نہلا لیا، کپڑے چینج کر کے سلا بھی دیا۔ کتنی صبر حیرت ہے بھائی، ہم لڑکیاں چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں شاہ جی، ہمیں خود سے کم نہ سمجھیے۔ حالے نے مسکرا کر کہا۔ جی بالکل، آپ ہم سے کسی صورت کم نہیں ہیں، بلکہ بعض دفعہ ہم آپ سے سبقت لے جاتی ہیں، بس آپ کو خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک بار آپ خود کو یہ باور کروا لیں کہ آپ کو یہ بیکار چیز نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ زرگام نے کہا، یہی تو کمی ہے ہم لڑکیوں میں شاہ جی، ہم سمجھتی ہیں کہ ہم زندگی میں ایک محافظ چاہیے جو ہمارے حصے کی جنگ لڑے، جو ہماری حفاظت کرے، لیکن دراصل ہمیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم تو خود اپنی محافظ بن سکتی ہیں۔ ہم اپنی لڑائیاں خود لڑ سکتی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ساری زندگی کسی شہزادے کے انتظار میں گزارنے کی۔ ہم اپنی کہانی کی ہیروئن خود بن سکتی ہیں، ہے نا؟ حالے نے کہا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن تمہاری کہانی کا ہیرو تو میں ہی ہوں نا؟ زرگام نے پوچھا تھا۔ خوشامد بری بلا ہے شاہ جی، حالے نے کہا تھا۔ کیا بولا؟ زرگام غصے سے بولا تھا۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، میرے ہیرو تو آپ ہی ہیں، بس آپ بچوں کو سنبھالنا سیکھ لیں، باقی آپ بالکل پرفیکٹ ہیں۔ یہ نمونے تمہارے ہیں محترمہ، آئی سمجھ۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بیٹی چاہیے، پر تم نے یہ جن پکڑا دیے، وہ بھی ایک نہیں دو، اس لیے وہ خود ہی سنبھالو۔ زرگام ہاتھ کھڑے کرتے بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے، سنبھال لوں گی میں اپنے شہزادے، خود ہی بڑی مہربانی ہے آپ کی، حالے نے منہ بناتے بولی تھی۔ ہاں سب کو سنبھال لینا، بس مجھے ہی نہ پوچھنا کیا مطلب ہے آپ کا، میں آپ کو نظر انداز کرتی ہوں؟ حالے نے آکروش کھا کے پوچھا تھا۔ آپ بالکل نظر انداز کرتی ہو تو میں مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتی، ہر وقت کام کام اور بس کام، اس لیے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں۔ زرگام مسکراہٹ چپ کرتے بولا تھا۔ آپ دوسری شادی کریں گے؟ حالے نے ماتھے پر تیرتی چڑھائے پوچھا۔ ہاں 1-2 لڑکیاں بھی ہیں میری نظر میں، کہو تو تمہیں ملوا سکتا ہوں۔ زرگام بولا۔ جی ضرور ملوائیں، میں بھی تو دیکھوں کون ہے وہ خوش نصیب جن کا قدر میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ حالے غصے سے بولی، جبکہ اس کی بات پر زرگام کی بے ساختہ ہنسی ٹوٹی تھی۔ ارے اتنی پیاری بیوی کے ہوتے ہوئے کون کمبخت دوسری شادی کرے گا، ہمیں تو یہ ونڈر وومن کافی ہے۔ زرگام اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تھا، جس پر حالے مسکرا دی۔ زندگی کتنی حسین ہوتی ہے جب ہم سفر اچھا ہو۔ ختم شد۔ سوری ریڈرز، یہ تھا ناول فخر شاہ اور اس کی رائٹر ہے زینب انصاری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔